बच्चों, एक नए टॉपिक, एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ फिर से हम आपके सामने हैं। और मुझे उम्मीद है आप इस क्लास का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। थॉरोली आप इसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं उसे आप खुद से प्रैक्टिस करें, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल बुक्स से मिले आप उसे भी प्रैक्टिस करें। एंड आई होप कि आप और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे और भी ज़्यादा सीखेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको ये सारा लेक्चर्स या वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वेलकम बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट। Let's discuss mesomeric effect. This is a permanent effect where the displacement of conjugational pi electrons are influenced by group attached to the carbon chain. This is a push or pull of pi electrons of conjugated system of molecule. M effect operates only in conjugated system. If conjugation is not available, M effect doesn't propagate further. M effect has no correlation with electronegativity of the connecting atom of the group. And M effect is of two types. It's plus M effect and minus M effect. Like inductive effect, plus I effect and minus I effect. Let's see what is plus M effect. Here it is written as plus R also. We have already told that mesomeric and resonance is very closely related, and mesomeric effect is a kind of resonance effect. So in place of mesomeric effect we can write resonance effect also. So let's discuss plus M effect. If a group pushes the electron into the pi electron system, the effect is said as plus M effect. The group is called the electron releasing group, and the effect will be noted as plus M effect, and group will be said plus M group. For example, here we have a group which is possessing a lone pair of electron, and conjugated double bond is here. This lone pair of electron pushes into this carbon, and this pi bond is going to this place and this pi bond is going to this place. So this may represented by, we will see C double bond C, single bond C, double bond C, and we have a group here. So if group is pushing an electron here, this electron will go there and this will go there. So this is now maybe written as minus, this electron is coming here, now this is coming plus, so double bond will be here due to this excess electron, and C single bond here, and this group is pushing its electron, so it is positive. So these are two resonating or mesomeric structure of this compound. SM effect is shown by chlorine, bromine, amine. This is primary amine, this is secondary amine, amide, OH group, OR group. There is one condition to show plus M effect. The condition is electron pair must be present at the first atom of group. If this group, if any group is connected here, so this group, इसके जो फर्स्ट एटम हैं, जो फर्स्ट एटम होंगे उस पर लोन पेयर होना चाहिए, भी ये फर्दर इस रिंग को, इस चेन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा. नेक्स्ट माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट. The pi electrons are present. The pi electrons of a present system is pulled by group
then this effect is called minus M effect, and the group will call the electron withdrawing group or minus M group. For example, we have a group here, and this can pull electron from this side. Suppose I am taking this example, and uh, okay, we have C double bond C, single bond C, double bond C, and a group is attached here. This group is able to withdraw the electron from this part, from this carbon group. तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसके साथ एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाने का कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस तरीके से फुलफिल होगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ डबल बॉन्ड होगा, और क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सो दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर माइनस एम group. And minus M effect is shown by the following groups: CHO group, CO group, COH group, NO2 group, CN group, SO3 group, SOCl group. And the condition for minus M effect is: first, vacant orbital must be present. This group should have a vacant orbital to accept the electron, and multiple bond with more electron negative second atom. Let's see. Here are a few plus M effect order. We can see here this is CH2 minus having the more electron releasing effect due to the mesomeric effect than NH minus than O minus. Similarly, NH minus will have more plus M effect than NH, and this is further, the series is here: NR2, NHR, secondary amine, primary amine, amine, amide, and secondary amide. Again, the series, next series is this, next series is this, and next series is this. It is not required to remember all these series. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की, तो ये हमारे एक बेसिक इंस्टिंक्ट में आ जाएगा, और इसे हम इजीली समझ सकेंगे कि हाँ ये सीरीज इस तरीके से होगा। प्रैक्टिस से ये काफी इजीली क्लियर हो जाता है जब हम आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे तो। नेक्स्ट वी हैव माइनस एम इफेक्ट ऑर्डर। जैसे कि प्लस एम इफेक्ट ऑर्डर में हमने देखा, उसी तरीके से माइनस एम इफेक्ट में भी हमें ये सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉब्लम बनाते समय इसे अपने सामने रख सकते हैं, और जब आप प्रॉब्लम करेंगे इस पर रिलेटेड, तो धीरे धीरे ये आपको खुद ही याद हो जाएगी। और ऐसा है कि इसे समझने का एक सेंस भी आपके अंदर डेवलप होगा, और ये सीरीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही जज कर पाएंगे कि किसका इफेक्ट ज्यादा होता है। Various resonating structures of chlorobenzene, aniline, and nitrobenzene are illustrated in the following notes, following diagrams. यहाँ पर अब हम लोगों ने कुछ क्लोरोबेंजीन, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन के डिफरेंट मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसे कैसे ड्रॉ करना है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उसमें काम करता है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि Cl और NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, जबकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। ये सीरीज में भी यहाँ पर आप देखेंगे NO2 इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट।
हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है Cl वाला, क्लोरोबेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, और इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम कर रहा है वो हम देखते हैं। इस तरीके से जो क्लोरीन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इस रिंग को देने के लिए रेडी रहता है। अब इस तरफ से ये इसको, और यहाँ पर देखें आप, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, दो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों में ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके कारण एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और यहाँ से क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है जो यहाँ है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आपको जनरेट हो रहा है जो ये है, इधर सिग्मा बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड अभी जो जनरेट हुआ। इस तरीके से फर्दर ये बी और सी और डी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में जाएंगे, और इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और फर्दर ये R5। ये R5 स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया है। इस तरीके से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, और ये देखा जा सकता है कि क्लोरीन जो है वो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इसका +m इफेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिलीन का। एनिलीन के जो ये लोन पेयर्स हैं, ये भी +m इफेक्ट के थ्रू इस रिंग में डोनेट होंगे। सिमिलरली क्लोरीन की तरह यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसकी वजह से इस पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, और इसके फिर फर्दर ये स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं NO2 की। NO2 के पास -m इफेक्ट का नेचर होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये विड्रॉ हो रहा है इस तरफ, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने रहता है। इस पॉजिटिव चार्ज को इस पाई बॉन्ड से यहाँ पर ये सब्सिडाइज करता है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आता है जो पाई बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ये NO2 -m इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो आया ये फर्दर फिर यहाँ से और फिर फर्दर यहाँ से रेजोनेट होकर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है, और इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन में जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसको देखा। अब कुछ बातें हैं जो याद रखनी है हमें। Mesomeric effects works only ortho and para position, works at only ortho and para position. It is absent on meta position, while the inductive effect works on pre, ortho, meta and para. However, intensity of effects decreases at the distance increases. तो हमें पता ही है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। साथ ही ये ऑर्थो, मेटा और पारा बेंजीन के तीनों पोजीशन पे काम करेगा। अगर कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, अभी अगर आप ऑर्थो, मेटा, पारा नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, ये ग्रुप ऑर्थो ग्रुप, ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, ये पोजीशन मेटा पोजीशन, और ये पोजीशन पारा पोजीशन कहलाता है। सिमिलरली ये मेटा पोजीशन और ये दूसरा ऑर्थो पोजीशन कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। तो इन्होंने कहा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ये हमारे पीछे के डायग्राम में भी आप देखेंगे, तो जो मेसोमेरिक के कारण नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है क्लोरोबेंजीन में, देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, फिर ये यहाँ पर पारा पोजीशन पे आ रहा है, फिर यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरीके से जो चार्ज रोटेशन हो रहा है वो सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन पर होता है। सिमिलरली यहाँ पर एनिलीन में भी हम देखें तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आया, नेगेटिव चार्ज पारा पोजीशन पे आया, और नेगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आया। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है, पारा पोजीशन पे है, और फिर से ऑर्थो पोजीशन में। इस तरीके से ये जो है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही वर्क करता है, जबकि इंडक्शन इफेक्ट सारे पोजीशन पे वर्क करता है।
Mesomeric effects have always dominant nature. Mesomeric effect always dominates over the inductive effect, except in the case of halogens, chlorine, bromine, iodine like that. हम लोगों ने एक इफेक्ट का सीरीज तो पहले से ही पढ़ा है, MRHI. The strength of different effect is this. Mesomeric is most effective electronic effect, then resonance effect, then hyperconjugation and then induction effect. ये universally applicable होता है except halogens में, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में. अब मेसोमेरिक इफेक्ट्स के कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं. So the first application is stability of intermediates. Intermediates हम लोगों ने देखा है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट्स में हम लोग देखते हैं. इंटरमीडिएट्स और भी होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट्स हम लोग सिर्फ इन्हीं 3 में अभी देखेंगे. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो अगर रेजोनेंस ज्यादा होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनने से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज मोर रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. The next point is aromatic cations are more stable than non-aromatic cations. ये काफी इजी आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग एरोमेटिसिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. एरोमेटिसिटी के वजह से जो रेजोनेंस होता है उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हायर होती है और वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. इस वजह से यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं. फिर बात करें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया गया है, वो आप देखें. इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि इसे कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे समझते हैं, तो ये कार्बोकेटाइन है जिसके कंजुगेट में एक पाई बॉन्ड है. यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन है और इसके कंजुगेट में पाई बॉन्ड है. यहाँ पर भी एक कार्बोकेटाइन है और इसके कंजुगेट में एक पाई बॉन्ड है. लेकिन यहाँ पर है दो CH3 ग्रुप अटैच्ड है जिसका 2 प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ पर आएगा. यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और इसका एक प्लस आई इफेक्ट आएगा. यहाँ पर इस जगह पर दोनों ग्रुप हाइड्रोजन है तो नो CH3 ग्रुप अटैच्ड, तो आई इफेक्ट नहीं होगा. तो फर्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें प्लस आई और प्लस एम दोनों इफेक्ट है, इसमें प्लस आई और प्लस एम दोनों इफेक्ट है, और इसमें सिर्फ प्लस एम इफेक्ट है. तो यहाँ पर देखें जो आई का स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर चूंकि नंबर विन हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो यहाँ पर हमारा आई इफेक्ट ज्यादा प्रिडोमिनेंट होगा. इस वजह से ये सीरीज जो है ये ज्यादा स्टेबल है. ये इससे इस तरीके से स्टेबिलिटी सीरीज इसकी हम बता सकते हैं. सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो इसमें इसके जो कंजुगेट पोजीशन पे है वहां पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक रेजोनेंस या मेसोमेरिक, आप दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, इफेक्ट होगा. रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होगा. यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर नो रेजोनेंस. यहाँ पर अल्फा पोजीशन नहीं है लेकिन एक दूर में है डबल बॉन्ड जिसका हमें काम नहीं आएगा. ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन, और ये रेजोनेटिंग नहीं है. तो इस तरीके से इसका भी हम इस तीनों जगह में से कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इस सिर्फ यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इस प्लेस में रेजोनेंस हो रहा है. इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. यहाँ पर सिर्फ इंडक्शन इफेक्ट है, इसकी स्टेबिलिटी सेकेंड में, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं, कोई इंडक्शन नहीं, तो इसमें ये लेस स्टेबल होगा. तो स्टेबिलिटी सीरीज इस तरीके से यहाँ पर आपकी दी गई है. एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है. इस एग्जांपल में देखें हम तो
ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर दो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पर सिर्फ एक कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर जो मेसोमेरिक या रेजोनेंस की स्ट्रेंथ होगी वो इससे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। तो इस तरह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखें ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो यहाँ लिखा भी है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है यहाँ लिखा भी है। लेकिन इसके कंजुगेट में पाई बॉन्ड है, इसके कंजुगेट में भी पाई बॉन्ड है और इसके कंजुगेट में भी पाई बॉन्ड है। यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पर इंडक्शन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पर इंडक्शन इफेक्ट और यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट के कंपैरिजन में ओवरऑल जो सीरीज होगा वो सीरीज ये होगा यहाँ पर। फर्दर अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखें ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कंजुगेट में है। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये कंजुगेट में है सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड कंजुगेट में नहीं है। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ होता तो फिर कंजुगेशन में आता, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में नहीं है। अगर यहाँ देखें तो ये दोनों पाई इसके कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ पे जो है वो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होगा ड्यू टू 2 पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा ड्यू टू 1 पाई बॉन्ड्स और यहाँ पे कोई रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट अगर इस सीरीज की बात करें, यहाँ पर 3 एरोमेटिक ग्रुप है कंजुगेशन में, यहाँ पर 2 एरोमेटिक ग्रुप है, यहाँ पर 1 एरोमेटिक ग्रुप है, यहाँ पर आप एक एलाइलिक ग्रुप है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये मिथाइल केटाइन है, ये विनाइल पोजीशन है और ये ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से हम इसकी सीरीज क्वाइट ऑब्वियस है, इसमें जो इसमें 3 ग्रुप्स के वजह से रेजोनेंस है, इसमें 2 ग्रुप्स के वजह से रेजोनेंस है, इसमें सिंगल बेंजीन रिंग है उसके वजह से रेजोनेंस है। यहाँ पर हमारे जो रेजोनेंस है वो एक पाई बॉन्ड के लिए है। रेजोनेंस या मेसोमेरिक हम बार बार बोल रहे हैं कि ये रेजोनेंस या मेसोमेरिक दोनों तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस इफेक्ट्स। मेसोमेरिक इज अ टाइप ऑफ मेसोमेरिक effect is a type of resonance effect. So all mesomeric effects are resonance effects. अब यहाँ देखें ये एलाइलिक पोजीशन के कारण हमारा पाई बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है यानी इसमें इंडक्शन इफेक्ट है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसमें भी इंडक्शन इफेक्ट है। अभी हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा है तो मैं वो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये मिथाइल केटाइन है और ये विनाइल केटाइन है। तो इस तरीके से हम जो है ये सीरीज इजिली डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है और वो एग्जाम्पल है ये यहाँ पर रेजोनेंस होगा, कंजुगेट पाई है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर ये
प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं आएगा क्योंकि ये कंजुगेटेड नहीं है, यहाँ पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। So due to resonance, it is more stable than 3 degree, and 3 degree is more stable than 1 degree carbocation. Answer is clear. The next example is, here we have pi in conjugation with positive charge. तो यहाँ पर एक रेजोनेंस इफेक्ट होगा, और यहाँ पर जो बेंजीन ग्रुप है यहाँ पर भी एक रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 होंगे, यहाँ पर 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पर जो बेंजाइल केटाइन वाला ग्रुप होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। आप ड्रॉ कर सकते हैं इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो आप खुद ट्राई करिए और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे आप मैच करा लीजिए। तो जो फर्स्ट आपका कंपाउंड है वो ये है CH2CH2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर CH2 प्लस जनरेट होगा। CH2 प्लस जनरेट होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर H है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और 2, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। जबकि बेंजीन में अगर हम बात करें बेंजाइल केटाइन की, यहाँ पर अगर ये केटाइन ग्रुप है, CH2 प्लस ग्रुप है और बेंजीन इस तरीके से है, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो ये डबल बॉन्ड इसे देगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस पोजीशन पे आपके। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 आएगा, ये कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, ये एक स्ट्रक्चर है। एक और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरा स्ट्रक्चर होगा जहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। फर्दर ये रेजोनेट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ रह गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और ये फर्दर यहाँ से CH2 यहाँ पर है। तो इसके ये सेकेंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर और ये फोर्थ, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर number of resonating structures, stability will be more. So this is the key rule here. Further we have some example also. Here NO2 group is electron withdrawing group and it is destabilizing the positive charge. अगर हम बात करें तो NO2 group has capacity of electron withdrawing due to two effects. One is minus I effect and another one is minus M effect. तो यहाँ पर अगर बात करें ऑर्थो पोजीशन पर, ये मेटा पोजीशन पे NO2 है और ये पारा पोजीशन पे NO2 है। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 में माइनस आई और माइनस आर दोनों इफेक्ट होंगे। मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, आर इफेक्ट नहीं होगा, ये हम लोगों ने पहले देखा है। और पारा पोजीशन पे माइनस आई और माइनस आर दोनों इफेक्ट होगा फिर से। तो इस तरीके से दोनों इफेक्ट है, लेकिन पारा पोजीशन पे जो है हमारा वो माइनस आई इफेक्ट लेसर होता है। पारा पोजीशन पे डिस्टेंस बढ़ने के वजह से माइनस आई इफेक्ट लेसर है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस। सो
second one is most stable, third one afterwards, and first one is least stable among these series. Next we have this example. Here OCS3 group has a minus I effect electron withdrawing effect due to inductive nature and plus M effect due to its mesomeric effect. जो इसके लोन पेयर हैं OCS3 के, ये डोनेट होते हैं प्लस M इफेक्ट में, और इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा, उसके वजह से ये इधर माइनस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। तो यहाँ पर देखें ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पर एम इफेक्ट आपका होगा और आई इफेक्ट दोनों होगा। तो इस केस में प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों होगा। इस केस में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, और इस केस में प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों होगा। As we all know that mesomeric effect has much more capacity in comparison to induction effect, यहाँ पर जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंडक्शन भी वीक हो गया है डिस्टेंस बढ़ने से। थर्ड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबलाइज्ड, then second structure will be more stabilized, and third structure is actually not stabilized due to OCS3, it is destabilized due to minus I effect. So series is third is most stable, first is afterward, and second is least stable. Now stability of carbonyl. More resonance in carbonyl, more stability of carbonyl. Stability order of the following carbon. Here we are seeing that in the first we have a pi electron here, we have a pi electron here in conjugation with this negative charge, and due to this it is possible to have a mesomeric or resonance structure here. Resonance, it will show resonance or mesomeric effect, and here it is a vinyl carbanion. Vinyl, this position is called vinyl anion, vinyl carbanion, and in this case CH3 minus will have a plus I effect. तो CH3 माइनस के प्लस आई इफेक्ट के वजह से कार्बेनाइन का नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से ये लिस्ट स्टेबल होगा, और यहाँ पे कार्बेनाइन का चार्ज इस एम इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा, चार्ज सब्सिडाइज्ड होगा, जिससे ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो सीरीज हमारा आंसर 1 is greater than 2 is greater than 3 होगा। नेक्स्ट वी हैव दिस एग्जांपल। यहाँ पर जो OH है, OH ग्रुप का यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं हम। OH के माइनस आई इफेक्ट के वजह से इस स्टेज पे जहाँ पे कार्बेनाइन है इस एग्जांपल में, इसके जस्ट नेबर में OH है, यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, फर्दर यहाँ पे डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया है। डिस्टेंस इंक्रीजिंग के वजह से इंडक्शन इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और डिस्टेंस बढ़ने से वो डिक्रीज करता है। इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर। इस वजह से ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर। फिर बात करें यहाँ पर, तो NO2 के पास जो इफेक्ट होता है NO2 के पास, वो माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस एम इफेक्ट भी होता है। तो NO2 के माइनस आई इफेक्ट के वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस लेसर है, यहाँ डिस्टेंस हाइयर है, यहाँ CH3 के साथ डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन एक ये CH3 का यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये मोस्ट स्टेबलाइज्ड होगा, और सेकेंड फर्स्ट पोजीशन पे ये स्टेबलाइज्ड होगा। थर्ड पोजीशन में क्या है कि हम देखें यहाँ पर, तो ये कंजुगेट में यहाँ पर
पाई बॉन्ड नहीं है या कंजुगेट में NO2 के कंजुगेट में नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर तो M इफेक्ट होगा, माइनस M इफेक्ट होगा। यहाँ पर माइनस M इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है, और यहाँ माइनस M इफेक्ट होगा। अगर NO2 के माइनस I और माइनस M दोनों इफेक्ट को कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि माइनस M इफेक्ट ऑलवेज very much predominant over minus I effect except in case of halogens। यहाँ पर माइनस M इफेक्ट की वजह से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और थर्ड स्ट्रक्चर है ये दोनों स्टेबल होता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को अगर कंपेयर करते हैं हम तो थर्ड में CH3 का एक प्लस I इफेक्ट है जो इस कार्बेनाइन को डिस्टेबलाइज भी करेगा, इसलिए मोस्ट स्टेबल इज फर्स्ट, नेक्स्ट स्टेबल इज थर्ड और लिस्ट स्टेबल इज सेकेंड। यहाँ पर सिर्फ I इफेक्ट होगा और मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा जो हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेजोनेंस इन दीज। यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज के अल्टरनेट में कंजुगेट में एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर क्योंकि ये पार्ट जो है ये एरोमेटिक पार्ट है, इस वजह से इसके जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड या ये पाई बॉन्ड, ये सब डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स हैं और ये इस नेगेटिव चार्ज के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो M इफेक्ट होगा वो नहीं होगा और ये नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन पर, इसी पोजीशन पर लोकलाइज्ड होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है लोकलाइज्ड चार्ज, नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस दो पाई बॉन्ड्स के वजह से यहाँ पर ज्यादा है, एक पाई बॉन्ड के वजह से यहाँ पर कम है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज थर्ड, नेक्स्ट स्टेबल इज फर्स्ट, और लिस्ट स्टेबल जहाँ पे मेसोमेरिक नहीं हो रहा है वो थर्ड है। इस एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पे ये बेंजाइल एनाइन है और यहाँ पर 3 बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पर 2 बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप है। इस जगह पर इसके एलाइलिक पोजीशन में एक पाई बॉन्ड है जिससे कि ये रेजोनेंस करा सकता है। यहाँ पे नो रेजोनेंस और नो मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट इस पोजीशन नहीं होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में CH3 पे माइनस है, ये मिथाइल केटाइन है, यहाँ पे प्लस I इफेक्ट की वजह से ये और लेस स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे डबल प्लस I इफेक्ट होगा, CH2 2 है, और यहाँ पे ट्रिपल प्लस I इफेक्ट होगा, CH3 3 है। इस तरीके से हम सीरीज देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर उसके बाद, यहाँ पर उसके बाद, इस और सबसे कम मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। इस एग्जाम्पल में ये NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव CH2 माइनस, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है और यहाँ पर पारा पोजीशन पे है। यहाँ पर NO2 का माइनस M और माइनस I इफेक्ट दोनों होगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस I इफेक्ट होगा और यहाँ पे माइनस M और माइनस I दोनों होगा। यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से NO2 का माइनस I इफेक्ट वीकर होगा, यहाँ पे भी Mi है तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विल बी 1, नेक्स्ट वन इज थर्ड एंड नेक्स्ट वन विल बी सेकेंड। So the answer is accordingly here first, third and second. So the next question is here OCH3 will have minus I effect and plus M effect. In this position, OCH3 is giving charge to ring due to plus M and withdrawing charge from ring due to minus I effect. In this condition, it is only minus I effect, and here also it is minus I and plus M effect. So सेकेंड में जो है वो स्टेबलाइजिंग ही है सिर्फ, इसलिए सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इस केस में जो
वो CH3 ग्रुप है वो CH2 माइनस से नियरर है, तो इसका इंडक्शन का कैपेसिटी इसके इंडक्शन के कैपेसिटी से ज्यादा होगा। इस वजह से जो प्लस m से डिस्टेबलाइज हो रहा है और माइनस i से स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर सेकेंड नंबर पे आएगा। और थर्ड नंबर पे ये प्लस m से डिस्टेबलाइज तो हो ही रहा है, माइनस m से स्टेबलाइज हो रहा है, और माइनस m जो है वो OCH3 ग्रुप बड़ा पोजीशन पे रहने के कारण डिस्टेंस ज्यादा है, तो वीकर होगा, इसलिए ये थर्ड नंबर पर आएगा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। More resonance, more stability of free radicals. For example, these are very similar examples as we have seen in carbanion and carbocations, and free radicals is very much similar to carbocation. तो आप इसे सोचें और इसका आंसर आपके सामने है। Here it is resonance but less, here no resonance, here it is more resonance. So where it is more resonance will be more stable, resonance less stable is second one, and no resonance is third one. Similarly, the second example which we have already seen in case of carbocation, so we can say the answer. Next, this example is also same as that of carbocation, so the answer is same. Now the acidic strength. Acidic strength, okay. So, to understand the acidic strength of HA, we have already seen that HA can dissociate into H plus and A minus. So, A minus is its conjugate base. Conjugate base. कोई भी एसिड HA वो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि इसका ये कंजुगेट बेस A माइनस कितना स्टेबल होगा। A माइनस अगर स्टेबल है तो एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, HA will be more acidic. HA will be more acidic. A minus is similar as carbanion C minus. अगर कार्बनिक एसिड की बात करें तो ये C माइनस होगा, तो कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी का जो कंडीशन होगा वही कंडीशन हो जाता है नाइन के स्टेबिलिटी का। तो कार्बेनाइन के कंडीशन में हम लोगों ने देखा था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है उसके वजह से एनाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ड्यू टू इंडक्शन वो स्टेबल होंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ इंडक्शन की वजह से वो डिस्टेबलाइज करेंगे। तो अभी हम अगर कंसीडर करें एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स वर्सेस एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर को OH, और फिनॉल जब आयंस में डिसोसिएट होगा तो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन देगा, O माइनस और H प्लस यहाँ पर होगा। सिमिलरली हमारे पास सिंपल अल्कोहल है, सपोज करें हमारे पास ROH, एक अल्कोहल है ROH, और ये डिसोसिएट होकर RO माइनस प्लस H प्लस में आता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर ये सिंपल अल्कोहल है तो यहाँ पर कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये इस O माइनस के कंजुगेशन में यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इस पाई के कंजुगेशन में ये पाई है, और इस पाई के कंजुगेशन में ये पाई है। तो इस तरीके से ये O माइनस जो है वो इस रिंग के माइनस M इफेक्ट के वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। इसके स्टेबलाइज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो एनाइन है वो स्टेबलाइज हो गया। तो ये फिनॉल बेटर एसिडिक होगा, ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इज ग्रेटर देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, जो मैंने यहाँ पर देखा वो यहाँ पर आपका आया भी है। नेक्स्ट देखें, फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ये हम लोगों ने देखा।
एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, फिनॉल इज सब्स्टिट्यूटेड तो उसके एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर फिनॉल नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, इस जगह पे ये जो फेनॉक्साइड आयन है कंजुगेट बेस है, ये नाइट्रो के माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है, stabilized by minus m or minus r and minus I effect, and minus I is maximum here क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, नियरर टू O माइनस ग्रुप है, इस वजह से ये स्टेबलाइज होगा। फिर अगर मेटा की बात करें तो मेटा पोजीशन पे यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है, ये हम लोगों ने पहले देखा है, तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्शन इफेक्ट होगा, स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट ओनली। और अगर पारा की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस और इंडक्शन दोनों होगा, लेकिन इंडक्शन डिस्टेंस के कारण थोड़ा वीकर होगा, तो इसलिए ये ऑर्थो वाले से लेस स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर जो मेरा एक सीरीज आता है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अभी जो हमने देखा उसमें ऑर्थो वाला ज्यादा होगा, उसके बाद बड़ा होगा और उसके बाद मेटा होगा, लेकिन यहाँ पर सीरीज कुछ चेंज है, यहाँ पर पैरा पोजीशन का वो ज्यादा है ऑर्थो पोजीशन के कंपैरिजन में। इसका ये रीजन होता है कि जो फिनॉल है वो नाइट्रो ग्रुप के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से H+ के फॉर्म में ये डिसोसिएट लेस होता है, जिससे इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से ये जो है ये सीरीज थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और पारा वाला है वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, फिर ऑर्थो वाला और फिर मेटा वाला, और जनरल फिनॉल इससे कम एसिडिक होगा। ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब बात करें अगर बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो बेंजोइक एसिड में जो O- ग्रुप है वो भी इस तरीके से स्टेबलाइज्ड होगा। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, NO2 किस तरीके से -m इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पर। Thus the anion stabilized by -m and -I effect, and due to it is in ortho position, so NO2 is in ortho position, so -I power is maximum here. Next, if we consider meta nitro derivative of carboxylic acid, then it has only induction effect, so it will be less stabilized as compared to the ortho or para. Next, we are considering the para, so para will have both -m and -I effect. -I is lesser here due to the distance, and in COH there is no NO2 to withdraw the electron, so the series is ortho is much stabilized, this one is ortho is much stabilized, then para, then it is meta, and last one is your benzoic acid. So ortho will be maximum, then para, then meta, then simple benzoic acid. ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो एसिडिटी ऑफ फिनॉल थी वो ऑर्थो वाले की कम हो गई थी, ऑर्थो पर NO2 जो था उसका कम था इन कंपैरिजन टू पारा वाले के, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्थो के केस में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती थी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से ये ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पारा, देन मेटा एंड देन बेंजोइक एसिड। अब अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में अगर +m इफेक्ट ज्यादा होगा
तो उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। प्लस एम इफेक्ट से अगर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा तो जो बेस है उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा होगी और इस तरीके से ये ज्यादा होगा। सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट से और माइनस आई इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस की। तो basicity of aromatic amines or any nitrogen containing compound is proportional to density, electron density on nitrogen. In aromatic amines, lone pair of electrons present on nitrogen is delocalized, hence electron density decreases due to resonance. For example, C6H5NH2 is less basic than CS3NH2. Here C6H5 will have a minus M effect, which will withdraw the lone pair electron of NH2, hence it is less basic than CS3NH2. अब अगर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर तो इसका रिंग का माइनस एम इफेक्ट होगा, यहाँ पर रिंग का माइनस एम इफेक्ट नहीं है, बदले में इसका एक आई इफेक्ट भी है। यहाँ पे रिंग का माइनस एम इफेक्ट है और इसका प्लस आई इफेक्ट है। इस तरीके से हम देखें तो रिंग पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विच इज एक्चुअली माइनस एम और माइनस आर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, सो मैक्सिमम बेसिक, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम बेसिक है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, आई से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी सीरीज होगी वो 2 is more stable, much stable than 3 and then 1. अब बात करें हम एमाइड की, तो एमाइड में जो डिलोकेलाइजेशन ड्यू टू CO बॉन्ड है, यहाँ पर CO बॉन्ड है, इसके वजह से इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ड्रॉ हो जाती है कि ये इस तरीके से O माइनस बना लेता है और यहाँ से ये डबल बॉन्ड बनाकर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। जो एमाइड्स होता है वो जनरली लेस बेसिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन बात करें, इस तरीके के जो एरोमेटिक एमाइड्स हैं, बेंजीन ग्रुप इधर जुड़ा हो, यहाँ पर एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ पर बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरीके के एमाइड्स में क्या होते हैं कि जैसे ही ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये रिंग जो बेंजीन रिंग है वो प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है और माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है। यहाँ पर ये प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबलाइज करता है और इस कंडीशन में ये जो NH2 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बच जाता है, वो हमारे पास उसी तरीके से रह जाता है जिस तरीके से सिंपल एलिफेटिक माइन में होता है। नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि इसके वजह से इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल RnH2 से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो एलिफेटिक एमाइड्स हैं, इससे एरोमेटिक एमाइड्स की बेसिसिटी ज्यादा होती है और इसे हम क्रॉस कंजुगेशन कहते हैं। क्रॉस कंजुगेशन इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ कंजुगेशन हो रहा था, यानी ये एक माइनस एम इफेक्ट ड्रॉ कर रहा था, इधर से कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ से ये प्लस एम इफेक्ट आया, ये इधर से माइनस एम दिया, ये माइनस एम का कैपेसिटी इस प्लस एम से बहुत कम हो जाता है, इस वजह से ये ज्यादा बेसिक हो जाता है। In this amide, there is cross conjugation which increases the basicity of aromatic this C6H5CONH2 is more basic than aliphatic CH3CONH2. Pi bond of CO group is in conjugation benzene ring as well as the lone pair of NH2 group. दोनों साइड से यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल है जिसे हम क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। तो क्रॉस कंजुगेशन के केस में बेसिसिटी इंक्रीज हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरोमेटिसिटी। सो एरोमेटिसिटी is another topic actually, and okay, let's discuss here. Aromaticity, according to Huckel rule, these are some conditions for aromaticity. Compounds should be cyclic, compounds should be planar or nearby planar, at least nearby planar का मतलब है कि इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी हो रहा है, उस वो
प्लेनर हो और उससे जुड़े जो ब्रांच हो हैं वो नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं. Compound should be conjugated throughout the ring. Single bond, double bond should be conjugated, and the compound should have 4n plus 2 number of delocalized electrons, where n is a whole number. तो 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो delocalized होने चाहिए. तो n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 5 हो तो delocalized इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 6 10 14 so on आपको आएगा. अब ये एंटी एरोमेटिक है. एंटी एरोमेटिक विल हैव ऑल कंडीशन सेम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4n only. So here n is not equals to 0. Mind it, n is not equals to 0. तो इस तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखें हम, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी संख्या हमें 4 8 12 16 और 20 मिलेगा. एरोमेटिसिटी के वजह से कोई भी कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, एंटी एरोमेटिसिटी के वजह से वो डिस्टेबल हो जाता है. और जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाता है. और यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इन कंजुगेटेड कंपाउंड और बॉन्ड ऑर्डर इन कंपाउंड्स विच एग्जिबिट्स रेजोनेंस. रेजोनेंस वाले कंपाउंड में जैसे कि बेंजीन में हम लोगों ने देखा, इसमें दो स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ दिया भी है, और हर एक सी बॉन्ड 1 2 3 4 5 और 6, हर एक C2C बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है. 1.5 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में इक्वल टाइम एग्जिस्ट करता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1.5 होता है. और ये बॉन्ड ऑर्डर हम यहाँ से निकाल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन इन बेंजीन आया. ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो देखिए आप, अगर किसी भी एक एटम की बात करें, यहाँ पर बात करें, ये इस साइड इसके दो बॉन्ड है, इस साइड इसके एक बॉन्ड है, तो 2 + 1 3, और इस जगह पर जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1.5. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखें तो दो इधर बॉन्ड है और एक बॉन्ड इधर है, तो 2 + 1 3 divided by 2 number of resonating structures will give us 1.5. So this was the class of resonance. I hope you have understand the things. आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पेन पेपर लेकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पर हम लोग एक क्लास और आगे भी लेंगे.